Good morning and welcome to the topic hemichordate. Today we are going to study the affinities and systematic position of hemichordata. इसमें जो बेस्ट एग्जाम्पल है हेमिकॉर्डेट का दैट इज़ द बैलेनोग्लोसिस. ये ग्रुप एंड्रोपनिस्टा में आते हैं और सबसे पहले गगनबार ने 1870 में इसके स्थापना की एंड इन 1885 बेटसन proposed the name hemichordata in place of the Andropnesta. And here we are going to study the whole affinities of this hemichordate group to the different classes, phyla, etc. तो इनमें जो सबसे पहले है that is the affinities with chordata. Affinities with chordata. In the topic affinities with chordata, सबसे पहले विलियम बेटसन ने 1885 में प्रपोज किया कि इनकी क्लोजर एफिनिटीज़ बिटवीन हेमिकॉर्डेटा एवं कॉर्डेटा. द रिजेम्बलेंस वॉज ऑन द प्रेजेंस ऑफ द थ्री फंडामेंटल कॉर्डेट कैरेक्टरिस्टिक्स. तीन फंडामेंटल जो कॉर्डेट कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में इन्होंने बताया गया. इनमें वो हैं दैट इज़ द नोटोकोड, प्रेजेंस ऑफ द नोटोकोड, द pharyngeal gill slits, dorsal tubular nerve cord. Okay. Now, moreover, the structure and function of the pharynx and branchial apparatus are similar to those of urochordata and cephalocordata. As the origin of coelom is enterocoelic in the form of 5 pouches. इनमें origin of जो coelom है वो एंट्रोसिलिक है and in the form of 5 pouches from larval archenteron. As in branchiostoma, due to these similarities, hemichordata had been considered the subphylum of the phylum Chordata till recently, representing the lowest group and probably having the common ancestry. Okay. लेकिन फिर इसमें ऑब्जेक्शंस हुए. इन ऑब्जेक्शंस में मेन कारण है that is the absence of the true notochord that does not occur in the hemichordates. Unlike that of the chordates, so-called notochord is very short. ये notochord जो है बहुत ही छोटा है, confined to the proboscis proboscis region में ही उपस्थित है and without any supporting function. कोई supporting function भी नहीं है. Now next, that is the nervous system. It is also the invertebrate type. It is distinctly of invertebrate type, being intraepidermal in position, having a ventral nerve cord and a circumentoric ring which are absent in chordates. Chordates के अंदर ये circumentoric ring और ventral nerve cord ये नहीं होता. But in balanoglossus there is the dorsal tubular nerve cord. इसमें balanoglossus में एक dorsal tubular nerve cord है और वो भी केवल confined to collar region only, collar region में है. Okay. Now next, that is the gill slits. Gill slits, that is numerous in hemichordates. Gill slits of balanoglossus are numerous in hemichordates and it's dorsal in position, whereas it is 5 to 7 in lateral in higher chordates. Higher chordates के अंदर कि ये 5 to 7 है और ये lateral position में located होते हैं. Okay. इसके अलावा और भी differences हैं, वो हैं that is the lacking metameric segmentation,
cephalization, then paired appendages, post-anal tail, exoskeleton, dermis, liver, hemoglobin, etc. Now, another difference is also there, that is the body is divided into proboscis, collar and trunk. Proboscis, collar and trunk. And there is some organs, that is a hepatic ceca, dorsal heart, then open neurocele, colorless blood, numerous gonads, etc. in the case of the melanoglossus. Okay. Now second one, that is affinities with the rhingocephalia. Affinities with the rhingocephalia. इनमें रिंगोसेफालिया या निमटीनिया ग्रुप के साथ इसकी समजातीयता या एफिनिटीज़ हैं. फीडिंग एंड बरोइंग हैबिट आर सिमिलर इन बेलनोग्लोसस एंड निमटीनिया. जो फीडिंग हैबिट हो, बरोइंग हैबिट हो, वो दोनों में एक समान है. बॉडी इज इलोंगेटेड, बर्मीफॉर्म and without any external metamerism, with terminal anus with smooth skin containing unicellular glands, ectodermal nerve plexus, and having metamerically arranged simple gonads. But Nemertinia differ in lacking dorsal nerve cord and in having lateral nerve cords and a protrusible proboscis. But Nemertinia के अंदर डोर्सल नर्व कोड हो या लैटरल नर्व कोड है और प्रोट्रूसिबल प्रोबोसिस, बाहर की ओर निकलने वाली जो प्रोबोसिस है, इसकी अनुपस्थिति है. ओके. और नेक्स्ट, दैट इज एफिनिटीज विद द फोरोनिडा. फोरोनिडा में सबसे पहले ये 1897 में मास्टरमैन द्वारा इनके बेलेनोग्लोसस के एवं फोरोनिस के रिलेशंस, संबंधों के बारे में बताया गया. इनमें दोनों के नर्वस सिस्टम एपिडर्मल इनर्जेंट, सिमिलर नेचर ऑफ एपिडर्मल नर्वस सिस्टम दोनों उनका एक समान कैसे एपिडर्मल नर्वस सिस्टम. देन नेक्स्ट, दैट इज द पेयर्ड गैस्ट्रिक डाइवर्टिकुला. Paired gastric diverticula of Phoronis, like that of the buccal diverticula of Belanoglossus, that forming so-called notochord. जो है gastric diverticula Phoronis के अंदर जो gastric diverticula है, वो Belanoglossus में जो buccal diverticula है उसी के साथ समझाते हैं, उससे समानताएं रखते हैं और ये सो कॉल्ड नोटोकोड भी कहा जाता है. ओके. और नेक्स्ट है लार्वा जो है एक्टिनोट्रोक लार्वा, फोरोनिस के एक्टिनोट्रोक लार्वा और टोर्नेरिया जो है बेलेनोग्लोसस का लार्वा, इन दोनों में भी समानताएं हैं. दैट इज एंट्रोपनेस्ट फीचर्स भी हैं और फोरोनिस की फीचर्स, एंड दैट इज this is the coelom के origin. Anus, that is surrounded by a ciliary ring, presence of the proboscis, pore and the sensory apical plate with cilia and eyes bone. यानी एक्टिनोट्रोक लार्वा एवं टोर्नेरिया लार्वा में भी सिमिलैरिटीज़ हैं. क्या क्या हैं सिमिलैरिटीज़? जैसे सीलोम के ओरिजिनो और सीलियरी रिंग जो है एनस के स्थान पर पाए जाते हैं. प्रोबोसिस पोर, प्रोबोसिस जो छिद्र है, और सेंसरी एपिकल प्लेट एवं सीलिया ऑन आईपोड्स. एंड बोथ हैव ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन ऑल्सो. फिर भी इसमें ऑब्जेक्शंस है. ऑब्जेक्शंस ये हैं कि कॉर्डेट फीचर्स ऑफ बेलेनोग्लोसस लाइक फैरिंजियल गिल्स आर एब्सेंट इन फोरोनिस. यानी जो फैरिंजियल गिल्स जो कॉर्डेट लक्षण है वो बेलेनोग्लोसस में उपस्थित होते हैं, बट फोरोनिस में नहीं होता है. ओके. अब its amount of development Phoronis does not corroborate Masterman's observations, so that relationships of these two group are rejected. इन दोनों के जो relationships है इसको reject किया गया. Next है
दैट इज एफिनिटीज विथ पोगोनोफोरा। पोगोनोफोरा ये सबसे पहले 1958 में मार्कस द्वारा इन दोनों को कोरिलेट किया गया। इनमें कहा गया सीलोम के ओरिजिन, एंड्रोसीलस ओरिजिन, बॉडी सीलोम। सीलोम को 3 भागों में बांटा गया, दैट इज द प्रोटोसोम, मेसोसोम एंड मेटासोम। नर्वस सिस्टम जो है इंट्रा एपिडर्मल है, पेरिकार्डियल सैक इन सम पोगोनोफोर्स और गोनाड्स फाउंड इन ट्रंक रीजन। इवन इनमें भी ऑब्जेक्शंस है, दैट इज पोगोनोफोर्स डिफर इन हैविंग प्रोटोसीलिक नेफ्रीडियल सीलोमोडक्ट्स लैकिंग इन एलिमेंट्री एंड एलिमेंट्री कैनाल। पोगोनोफोर्स के अंदर जो है हैविंग प्रोटोसीलिक नेफ्रीडियल सीलोमोडक्ट्स और एक एलिमेंट्री कैनाल, इन दोनों की अनुपस्थिति है। और नर्वस सिस्टम is concentrated in protostome in Pogonophora but in mesosome in hemichordate। जो नर्वस सिस्टम है वो पोगोनोफोर्स में प्रोटोसोम में रीजन में उपस्थित होते हैं और हेमिकोडेट के अंदर मेसोसोमल एरिया में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है एफिनिटीज विद द एनालिड्स। एफिनिटीज विद एनालिड्स में सबसे पहले 1893 में स्पेंजल द्वारा इनके एफिनिटीज एनालिडा एवं हेमिकोडेट के एफिनिटीज के बारे में बताया गया। इनमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स इन दोनों में आपस में इनकी समझाती लिए हुए हैं या सिमिलैरिटीज़ के रूप में है, बॉडी इज वर्मीफॉर्म एंड सीलोमेट। दोनों की बॉडी वर्मीफॉर्म है और सीलोमेट। बरोइंग हैबिट है, tuberculous life and ingesting the mud which is passed out as castings through the anus। जो tuberculous forms ट्यूब ड्रिलिंग फॉर्म में होते हैं और जो मड जो है फूड के रूप में अंदर लेते हैं वो कास्टिंग्स के रूप में बाहर एनस से बाहर आ जाते हैं। कॉलर ऑफ बेलेनोग्लोसिस इज सिमिलर टू क्लाइटेलम ऑफ द अर्थवर्म। जो बेलेनोग्लोसिस में कॉलर जो है वो अर्थवर्म में जो क्लाइटेलम है परियाणिका उसी के समान थी। प्रोबोसिस एंड प्रोस्टोमियम सिमिलर एंड प्रीओरल। जो प्रोबोसिस है फर्स्ट पार्ट ऑफ द बॉडी दैट इज द प्रोबोसिस एंड इन द केस ऑफ एनालिड्स दैट इज द प्रोस्टोमियम। इन दोनों में एक समान है। और ब्लड वेसल्स के ब्लड वेसल्स एंड फ्लो ऑफ ब्लड इज सिमिलर इन बोथ केसेस। ओके, नेक्स्ट दैट इज द similarities of Tornaria and the trochophore larva. And Tornaria, that is the larva of Belenoglosus, shows several resemblance with the trochophore larva of the annelid, that is pelagic होते हैं, pelagic, apical plate present, eye spot present, it is ciliary, sensory ciliage present, well developed alimentary canal। यानी टोर्नेरिया लार्वा एवं जो ट्रोकोफोर लार्वा इन दोनों में भी सिमिलैरिटीज़ उपस्थित हैं, बट फिर भी इसमें ऑब्जेक्शंस है। ऑब्जेक्शन के रूप में ये दिया गया है दैट इज एनालिड्स के अंदर फैरेंजियल ग्लिसरिड्स, स्टोमाकोड, बकल डाइवर्टिकुलम, डोर्सल ट्यूबुलर नॉर्बोड ये अनुपस्थित होते हैं। यानी ये जो लक्षण है फैरेंजियल ग्लिसरिड, स्टोमाकोड, बकल डाइवर्टिकुलम, डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड, they are all found in the case of the Belenoglosus, but the Belenoglosus do not have the solid ventral nerve cord nephridia that is present in the case of the annelids। और टोर्नेरिया लार्वा में जो इन टोर्नेरिया लार्वा ऑफ Belenoglosus pre-oral proboscis coelom is present, nephridia are absent, blastopore becomes anus of the adult tetrastomy। This we can compare it with that of the fundamental differences। The similarities of these two groups only superficial है इनकी similarities, हो सकता है quite insignificant भी, indicating probably the convergent evolution due to similar habit and habitat। इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हो सकता है कि ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के कारण हो। वो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन इसीलिए भी है एक समान स्वभाव एवं आवास में रहने के कारण इनके कैरेक्टरिस्टिक्स एक समान दिखाई देते हैं। नेक्स्ट दैट इज द एफिनिटीज विद एकाइनोडर्मेटा।
एकेनोडर्मेटा की जो कैरेक्टरिस्टिक्स में जो रिसम्बलेंसेस दर्शाते हैं, तो वो हम एडल्ट के साथ एवं लार्वल फॉर्म्स के साथ दोनों का रिसम्बलेंस बताएंगे। तो पहले हम देखेंगे एडल्ट रिसम्बलेंस, यानी द सीलोमीट है एंड्रोसीलिक इन बोथ केसेस। दोनों में जो सीलोम की डेवलपमेंट है एंड्रोसीलिक प्रकार के हैं। हार्ड वेसिकल एंड ग्लोमेरुलस ऑफ एंड्रोपनिस्ट आर होमोलोगस डोर्सल सैक एंड एक्शियल ग्लैंड ऑफ द एकेनोडर्म्स। जो डोर्सल सैक एवं एक्शियल ग्रंथि जो एकेनोडर्म्स में उपस्थित होता है उसी से समानता रखता है हार्ट वेसिकल एवं ग्लोमेरुलस ऑफ एंड्रोपनिस्ट। दोनों में नर्वस सिस्टम पुअरली डेवलप्ड है। प्रोटीन्स एंड फॉस्फेजेंस प्रेजेंट इन हेमिकोडेट्स क्लोजली रिसेंबल दोस ऑफ एकेनोडर्म्स। जो हेमिकोडेट्स के अंदर जो प्रोटीन्स एवं फॉस्फेजेंस हैं उनमें क्लियर रिसेंबलेंस पाए जाते हैं एकेनोडर्म्स के समान। एकेनोडर्म्स के अंदर जो उपस्थित होते हैं प्रोटीन्स एवं फॉस्फेजेंस उसी के समान होते हैं। ओके, नाउ द लार्वल रिसेंबलेंस जो है जॉनस मुलर ने, क्रोन 1854 ने, अगासी ने proved to be the entroponist larva. Okay, the two groups show a strong affinity on embryological ground. इन दोनों में embryological ground में जो टोर्नेरिया लार्वा, पल्नोग्लोसस और एकेनोडर्म लार्वा, इन दोनों में स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी यानी बाइपिनेरिया जो है, बाइपिनेरिया लार्वा के साथ में स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी है, ये प्रूव किया गया। यानी क्या क्या है इनके लार्वल रिसेंबलेंस वो देखें। बोथ आर स्मॉल एंड पेलाजिक, ट्रांसपेरेंट एंड ओवल। दोनों लार्वल फॉर्म्स स्मॉल है, पेलाजिक है, ट्रांसपेरेंट है एंड ओवल है। दोनों में सीलिएटेड बैंड्स एक समान है, टेकिंग ए सिमिलर ट्विस्टेड कोर्स। दोनों में जो सीलिएटेड बैंड्स है वो एक समान ट्विस्टेड कोर्स होते हैं। सीलोम जो है दोनों में एक समान एंट्रोसीलिक ओरिजिन। प्रोबोसिस सीलम ओपनिंग टू आउटसाइड बाय प्रोबोसिस पोर इन टोर्नेरिया कंपेरेबल टू हाइड्रोसील ऑफ एकेनोडर्म ट्रैक्लोरिया। जो प्रोबोसिस पोर टोर्नेरिया में जो उपस्थित होते हैं वो वी कैन कंपेयर इट विद दैट ऑफ द हाइड्रोसील ऑफ एकेनोडर्म डायप्लोरिया। ब्लास्टोपोर becomes the anus and it gives the digestive tract is complete with mouth, anus and same parts. यानी करीब करीब जो बाइपिनेरिया लार्वा एवं टोर्नेरिया लार्वा में कई सारे सिमिलैरिटीज या समजातीयताएँ हैं, ये इनके स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स के अनुसार आपको बताई गई। अब इनमें भी ऑब्जेक्शंस है। और Tornaria larva shows presence of apical plate with sensory hairs and eye spot and also telocrop. These are absent in एकेनोडर्म larva. Tornaria larva के अंदर जो apical plate है, sensory hairs है, eye spot है, telocrop है, ये उपस्थित है और ये एकेनोडर्म larva में अनुपस्थित है। प्रोटोसील सिंगल इन टोर्नेरिया। प्रोटोसील जो टोर्नेरिया में सिंगल होते हैं but paired in the case of एकेनोडर्म larva. This raises the doubts about the एकेनोडर्म affinities of hemichordates, and I believe that their larval similarities are only because of the convergent evolution due to same mode of habit and habitats. वैसे ही adult का जो same mode of life या habit एवं habitat है that leads to convergent evolution. तो इसी तरह से larval forms में भी same mode of habit एवं habitat है, इसी वजह से है इनमें कैरेक्टरिस्टिक की एक समान दिखाई देते हैं। ओके, नाउ द सिस्टमैटिक पोजीशन में देखा जाए कि ये हेमिकोडेट जो हैं बड़े कॉन्ट्रोवर्शियल है इनकी पोजीशन, सिस्टमैटिक पोजीशन, और अनसर्टन इसका पोजीशन है, अनसर्टन भी है, कंट्रोवर्शियल भी है। इनमें कई सारे साइंटिस्टों ने काम किया इनको
काम करने के पश्चात जैसे साइंटिस्ट हैं वांडरहोस्ट, मार्कस, they remove the hemichordates from the phylum Chordata and treat them as an independent phylum. Since the group comprises only about 80 species, it is included in the category of the minor phyla. Now the phylogeny. Regarding the phylogeny, the close affinities of Echinodermata, Phoronida, Pogonophora, Hemichordata and Chordata have led to the conclusion that they have arisen from the common ancestral stock, probably the Diplurula larva. फाइलोजनी में देखा जाए इन सभी की जो ग्रुप्स है कैनोडर्मेटा, फोरोनिडा, पोगोनोफोरा, हेमिकोडेटा, कोडेटा, इन सभी की जो लार्वल स्टेजेस हो या इनके जो एंसेस्ट्रल स्टॉक है वो लेड्स टू द डायप्लूरुला कॉमन एंसेस्ट्रल स्टॉक दिखाई देते, दैट इज द डायप्लूरुला लार्वा. इवन दो कुछ साइंटिस्ट इनके they interpreted their views based on the deuterostome line of the chordate evolution, जैसे Barrington, Hyman, etc. According to his explanation that the Echinodermata deviated greatly from the ancestral stock. ancestral stock से deviate होते हुए एक blind branch का formation. Hemichordata also did not stand on the direct line of ancestry but formed a divergent offshoot from the main line of chordate evolution. Since the hemichordates arose from the ancestral line, यानी hemichordates ancestral line से उठकर एक divergent ancient echinodermata, but before the rise of true chordates, they are often called the pre-chordates. Okay, thank you.